Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Shakti Pumps India Limited Q4 and FY23 earnings conference call. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then 0 on a touch-tone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Rohit Anand from Ernst & Young LLP. Thank you, and over to you, Mr. Anand. Thank you, and good afternoon, everyone. Before we proceed, let me remind you that the discussion may contain forward-looking statements that may involve known or unknown risks, uncertainties, and other factors. It must be viewed in conjunction with our business risks that could cause future result performance or achievements to differ significantly from what is expressed or implied by such forward-looking statements. To take us forward through the financial results and development, and to answer your question today, we have the senior management of Shakti Pumps India Limited, represented by Mr. Dinesh Patidar, Managing Director, Mr. Ramesh Patidar, Executive Director Exports, Mr. Dinesh Patel, Chief Financial Officer, and Mr. Ravi Patidar, CS and by Mr. Dinesh Patidar, followed by the Q&A session. I will now hand over the call to Mr. Patidar. Over to you, sir. Thank you, Rohit. नमस्कार दोस्तों, इस कॉल में आपका स्वागत है और आपके यहाँ आने के लिए धन्यवाद है। आप सभी को एक सबसे अच्छी न्यूज़ हम ये देना चाहेंगे कि भारत सरकार, जिसके लिए हम सब पिछले 2 क्वार्टर से इंतजार कर रहे थे, भारत सरकार की सेकी डिपार्टमेंट से जो रेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम इंतजार कर रहे थे, वो रेट कॉन्ट्रैक्ट रिलीज हो गया है और हमें 21 राज्यों में सोलर पंप प्रदान करने की योग्यता मिल चुकी है और 21 राज्यों में शक्ति पंप अब अपने नेटवर्क को बढ़ाने जा रहा है, अपने ग्राहक को सुविधा देने जा रहा है और हम सोलर पंपिंग में आने वाले समय में लीडर की ओर बढ़ रहे हैं। पीएम कुसुम योजना में अधिक जो नंबर ज़्यादातर आए हैं उन्हीं स्टेट में ज़्यादा है, जो 80% स्टेट जो हमारे पास जिन स्टेट में हमने पहले काम किया है, जैसे महाराष्ट्र है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, इन्हीं स्टेटों में करीब 80% क्वांटिटी जो तकरीबन 8,57,000 पंप्स की हैं, वो इसमें से 80% इन्हीं की है, बाकी नए स्टेट में है और नया भी हमारे लिए बिजनेस खुलने जा रहा है। तो खास बात तो ये है कि हम लोग पिछले 2 क्वार्टर से इंतजार कर रहे थे और वो अब रेट आ गए हैं, रेट हमने आगे बढ़ा दिए हैं और एक्सेप्टेशन के लिए आज लेटर भारत सरकार को हमने भेज दिया है कि हम इस पे 21 राज्यों में काम करने के लिए तैयार हैं और हमारी जो परचेस की टीम है उनको भी बोल दिया है कि अपने फर्दर नेगोशिएशन के लिए अपनी जो हमारे वेंडर्स हैं, जो हमारे सप्लायर्स हैं, उनसे अच्छे तरीके से अच्छी क्वांटिटी को नेगोशिएशन करते हुए आगे हम इस पे काम बढ़ाएंगे। आगे हम अपने एक्सपोर्ट बिजनेस में भी हमने अच्छे से अच्छा काम किया है। हमारी सबसे अच्छी बात तो ये रही है कि दोनों वर्षों से यूएसए में हमको डिविडेंड मिला है। यूएसए की हमारी कंपनी ने हमको डिविडेंड दिया है, 2 साल से लगातार डिविडेंड देती आई है और वहाँ पर भी हमारा नेटवर्क बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका है। और आगे की फाइनेंशियल डिटेल के लिए मैं हमारे सीएफओ दिनेश पटेल साहब से अनुरोध करूँगा कि आगे आप फाइनेंशियल डिटेल बताएं। ओवर टू दिनेश। Thank you, sir. Revenue from operation in Q4 FY23 stood at rupees 182.7 crore as against rupees 384.6 crore in the corresponding quarter. Revenue from the export business stood at rupees 68.9 crore as compared to rupees 51.5 crore, registering a strong growth of 34% YOY. EBITDA for Q4 FY23 was at rupees 10.9 crore and EBITDA margin was at 6%. The company reported a PAT of rupees 2.2 crore during Q4 FY23. During the full year FY23, we recorded a revenue of rupees 967.7 crore as against rupees 1,178.5 crore in FY22.
The export business continued its growth journey and surged 27% YoY to rupees 234.8 crore. EBITDA for FY23 was at rupees 66.6 crore, EBITDA margin at 6.9%, and PAT was at rupees 24.1 crore. Now I request the moderator to open the floor for question and answer. So should we begin the question and answer session? Yes. Thank you. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. Our first question is from the line of Mr. Kaushal Vora from Latin Manarlal Security. Please go ahead. Sir, wanted to know more about the Kusum 3.0. As you said, size is 8,57,000 pounds. So what is the timeline for that? 2 years, 2 साल के लिए है. 8,57,000 पंप्स की क्वांटिटी सैंक्शन की है भारत सरकार ने और वो 2 साल में पूरी करनी है. ओके. और सर, आप जो प्राइसिंग का बात कर रहे थे, आपने और एक और कंपनी ने साथ में बात किया था प्राइसिंग के बारे में, तो प्राइस कैसी आई है? नहीं, आपका प्राइसिंग के बारे में हमने बिल्कुल बताया था कि प्राइसिंग के लिए ही ये रीटेंडर हुआ है और प्राइसिंग जो है अभी हमारी टीम, परचेस की टीम भी निगोशिएशन कर रही है हमारे वेंडर से और प्राइसिंग पिछले टेंडर से थोड़ी बेहतर आई है, लेकिन हम और कोशिश कर रहे हैं कि उसको फर्दर निगोशिएट करके आगे उसको ले जाना है. ओके. और तो जैसे आप बोल रहे थे कि पहले 5 HP का पंप अप्रोक्सीमेट 2.5 लाख का हो रहा था, तो अभी ये जो नया टेंडर जो प्राइसिंग गवर्नमेंट की साइड से आया है, तो वो अप्रोक्सीमेट कितना होगा? 3 लाख के आसपास हो सकता है? एक्चुअली क्या हुआ है कि देखिए, जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई है इन दिनों, जो पहले पोली के सेल लगाए जाते थे, अब मोनो के सेल लगाए गए हैं, क्योंकि मोनो के सेल पे अब टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी मोनो पे आ गई है. उसमें तकरीबन 25 से 30% स्पेस सेव होती है और पूरी दुनिया में स्पेस को लेकर ही प्रॉब्लम है, तो वो स्पेसिफिकेशन चेंज हुआ है. उसमें पुराने सोलर के जो पोली के रेट थे वो भी चेंज हुए हैं. यस, मार्जिन हम लोग अच्छा मेंटेन करने की कोशिश करेंगे इसमें. ओके. तो पहले से मार्जिन बेटर हो गई इसमें? यस, बेटर होगी. और सर, कब से स्टार्ट होने की संभावना है ये स्कीम? अगले क्वार्टर से हम आपको एक अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे, क्योंकि रेट अभी आज हमने मिनिस्ट्री को भेजा है, वहाँ से हमको LOI वगैरह मिलने में एक 1.5 महीना अगेन जाएगा, तो इसको जाते जाते 1 क्वार्टर होगा और अगले क्वार्टर से हम इसको स्टार्ट करेंगे. So we can expect by July onwards we can see the Kusum 3.0 starting. श्योर. ओके. और सर, युगांडा का क्या सिचुएशन है? युगांडा का सिचुएशन भी हमारे पास ऑलरेडी, युगांडा के प्रोग्रेस के लिए मैं रमेश को बोलूँगा, वो आपको अपडेट करेंगे. हमारे एक्सपोर्ट डायरेक्टर है हमारे साथ. ओके. हाँ जी, गुड आफ्टरनून. ओके. हमारा युगांडा का भी जो हम लोग एडवांस पेमेंट का वेट कर रहे थे, तो गवर्नमेंट युगांडा का भी कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास में आ चुका है, तो टोटल 60 करोड़ हमारा एडवांस आ चुका है और हमने अभी इम्प्लीमेंटेशन का काम स्टार्ट कर दिया है. अभी हमारा इसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी हुआ था, जिसमें हमें हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर गए थे, तो उन्होंने इसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी लास्ट अप्रैल में किया है. ओके. तो ये भी प्रोग्रेस है. ओके. तो ये क्वार्टर से स्टार्ट हो जाएगा युगांडा का कमिंग, और नेक्स्ट क्वार्टर वी विल सी इन द नंबर. इस क्वार्टर में थोड़े रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन ये क्या है कि वहाँ पर हम लोगों ने जो साइट क्लियरेंस वगैरह भी करवाना पड़ता है, तो जैसे जैसे प्रोग्रेस होती जाएगी हम लोग इसके रिजल्ट देते जाएंगे आपको. ओके. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू वरा जी. थैंक यू. Thank you. Our next question is from the line of Mr. Vishal from Swan. Please go ahead.
Thank you for taking my question, sir. Sir, just wanted to know the breakup customer-wise which you give every year. विशाल जी, कस्टमर वाइज तो नहीं, हम लोग सेगमेंट वाइज जरूर ब्रेकअप दे सकते हैं, और मैं आपको कस्टमर वाइज तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन सेगमेंट वाइज भी जो आपको ब्रेकअप दूंगा वो उसमें मैं दिनेश को बोलता हूँ आपको सेगमेंट वाइज ब्रेकअप देते हैं. हाँ सर, बेसिकली कस्टमर सेगमेंट वाइज ब्रेकअप फॉर द ईयर एज वेल एज फॉर द क्वार्टर, दैट विल बी हेल्पफुल सर. राइट राइट. तो आप श्योर. सर एक और चीज ये समझना था सर, हाउ डू यू सी नाउ गोइंग फॉरवर्ड, ये जो 21 स्टेट्स में आप क्वालिफाई, आपने गो अहेड अप्रूवल दे दिया है, you will be participating in the tender. So how fast you expect this ordering process will start, and when will this execution start? So can we easily assume कि ये जो चीज होगी, majority of the ordering will be in the second half और second quarter, कैसे होगा ये रोड मैप? हाँ, अगले क्वार्टर से, इसमें मैंने बताया ना, अगले क्वार्टर से आप कुसुम की सेल हमारे इसमें देखना चालू करोगे. अभी आज भारत सरकार के पास जो रेट एक्सेप्टेशंस का लेटर हमारी तरफ से गया है, वहाँ से वो पूरा एक रेट लिस्ट पूरा फाइनल करके सारे स्टेट को भेजेंगे LOI के लिए, और सारे स्टेट फिर हमको एक लेटर लिखेंगे और हम स्टेट के साथ एग्रीमेंट करेंगे. तो ये सारी प्रोसेस में 1-1.5 महीना जाएगा. तो रिजल्ट आप जो देखेंगे अगले क्वार्टर से आप रिजल्ट देख पाएंगे. उसके रिजल्ट कुसुम के अगले क्वार्टर से स्टार्ट हो जाएंगे, नेक्स्ट क्वार्टर से. ओके. और सर इन टर्म्स ऑफ ये जो एक्सपोर्ट ऑर्डर अपने पास आया है, युगांडा का एग्जीक्यूशन जो शुरू होगा, तो वो एग्जीक्यूशन ये क्वार्टर से शुरू हो गया. इज दिस अंडरस्टैंडिंग राइट? राइट. थोड़ा स्टार्ट हो गया इस क्वार्टर से, लेकिन जो एकदम अच्छे से स्टार्ट होना है उसमें अपना अगले क्वार्टर से वो भी स्टार्ट हो जाएगा. ओके, सो अगला क्वार्टर मतलब यू आर सेइंग सर Q2 FY24. ओके. सो इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं सर जस्ट थोड़ा सा आगे का परफॉर्मेंस के बारे में जानना चाहता हूँ. इन Q1 our performance will be slightly better than Q4, but it will not be significantly better because हमारा जो एग्जीक्यूशन है बेसिकली वो थोड़ा सा बैक एंडेड है ये साल. परफेक्टली राइट. आपने विशाल बहुत अच्छे से इसको किया है. बहुत ही लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि इस क्वार्टर में तो कुसुम की सेल ऐड नहीं होगी, तो ये तो स्लाइटली थोड़ा सा वीक रहेगा, लेकिन ये सेकंड क्वार्टर से हम लोग एकदम स्पीड से आगे चलेंगे और देखते हैं कि आगे जाके और क्या इसमें और अच्छे से कर सकते हैं. ओके, फैंटास्टिक सर. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट सर. थैंक यू. Thank you. Our next question is from the line of Mr. Ankit from JHP Securities. Please go ahead. Thank you for taking up that question. So actually I wanted to ask, in Kusum scheme 2, the Shakti Pumps contribution in total execution is getting reduced quarter on quarter. So what's the reason behind that? Because in quarter 1 it was 45%. Currently in quarter 4 it is at 24%. Any reason for that? पिछले 2 क्वार्टर से हम बताते आ रहे हैं कि जो रेट को लेके जो रेट है ना, टेंडर के एक्सपायर हो चुके थे और वो रेट इतने अच्छे नहीं थे कि हमको कुछ इसमें मार्जिन बन रहा था. इसलिए हमने एक 350 करोड़ का हरियाणा गवर्नमेंट का वो हमने सिलेंडर कर दिया था. अब वो क्वार्टर 2 में उसकी रियलाइजेशन भी चालू हो जाएगी और दूसरे स्टेट से भी उसके ऑर्डर चालू हो जाएंगे. तो वो ऑर्डर हमने इसलिए रोक दिया था क्योंकि हमको उसमें प्राइसिंग में कुछ पैसा बन नहीं रहा था. तो अब वो क्योंकि रेट भी एक्सपायर हो चुके थे तो हमने उसको सिलेंडर किया तो वो होल्ड हुआ. तो अब अगले क्वार्टर में उसके रिजल्ट आप Q2 में देखेंगे. ओके. और मेरे को कुसुम स्कीम में सोलर EPC और अदर्स में बाइफर्केशन मिलेगा रेवेन्यू का? हाँ बिल्कुल मिलेगा. हमारा जो अभी इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है उसमें 623 करोड़ का सोलर EPC से है. एक्सपोर्ट से 235 करोड़ है. ओके. एग्री डोमेस्टिक एंड OEM है. ओके. एक्सपोर्ट में हमने 25% ग्रोथ की है. यस. ओके. क्वार्टर 4 का क्या रहेगा फिगर? क्वार्टर 4 में 90 करोड़ करीब हमारा EPC से है. 69 हमारा एक्सपोर्ट से है. ओके. एग्री OEM और डोमेस्टिक से है.
Okay. Thank you so much. Thank you, Ankit. Thank you. Our next question is from the line of Vijay Srivastava from VSF Associates. Please go ahead. Mr. Srivastava, your line has been unmuted. You can go ahead with your question. As there is no response from the participant's line, may I request the management that we'll move to the next question. Our next question is from the line of Hardik Vyas from Economic Times. Please go ahead. गुड आफ्टरनून सर. मेरा सवाल ये था कि जो 21 स्टेट में हम लोग पार्टिसिपेट किया है और अपने को रेट टेंडर हुआ है, सो दोज रेट्स आर गोइंग टू बी द सेम फॉर ऑल द स्टेट्स और वो हर एक स्टेट का रेट अलग होगा? अलग अलग है हर एक स्टेट के. हार्दिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका. हर एक स्टेट में अलग अलग रेट्स हैं और वो बहुत अच्छे से इस बार प्लानिंग हुई है उनकी और वो रेट्स वर्केबल है और उसमें हम लोग काम करने जा रहे हैं. सर, ये जो रेट्स सब में अलग अलग हैं, तो हर एक स्टेट में अपना प्राइसिंग डायनामिक रहेगा? जैसे कि अगर पिछले 2-3 साल में अपने को ऐसा हुआ है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए हैं पर अपने को प्राइस हाइक मिला नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, और कभी कभी अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम होते हैं तो प्राइस रिविजन डाउनवर्ड हो जाता है, बट अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाता है तो अपने को अपर रिविजन नहीं मिलता है. तो इसमें वो क्लॉज होगा कि अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो वी विल बी एबल टू सेल इट एट लिटिल हायर प्राइस टू सेव आवर मार्जिन और समथिंग लाइक दैट. ये हार्दिक, आपने बहुत अच्छी बात बोली. हमने पूरी कोशिश की थी कि हम मिनिस्ट्री को इस बारे में बताया भी था कि आप लोग इसमें प्राइस वेरिएशन क्लास डालिए, लेकिन वो नहीं डाला है और उसके लिए एग्री नहीं हुए हैं. तो प्राइस तो अभी हमारी सेल प्राइस तो अगले 2 साल के लिए फिक्स हो गई है. अच्छा, अगले 2 साल के लिए सेल प्राइस फिक्स है. तो फिक्स हो गई. थोड़ा भी इंडिकेशन दे पाएंगे कि आप ट्राई कर रहे हैं और ज़्यादा एस्केलेशन की, बट जैसे 2.5 लाख, किसी ने सवाल पूछा था 2.5 लाख का 5 हॉर्स पावर का, तो उसका 3.5, 3.3, मतलब कुछ तो इंडिकेशन तो हम वी कैन बिल्ड इट इन आवर मॉडल्स अकॉर्डिंगली कि हाँ इतना हो सकता है. देखिए 21 स्टेट की जब मैं आपको आपने इसकी प्राइस बताऊंगा 5 HP की, तो 2,80,000 से 3,09,000 के बीच में प्राइसिंग आई हुई है. ओके, 2,80,000 से 3,09,000 के बीच में. ठीक है सर. और सर मुझे और एक सवाल पूछना था कि जो आपने पॉली और मोनो का टेक्नोलॉजी चेंज बताया, तो इसके वजह से अपना 25-30% कॉस्ट सेविंग तो हो रहा है, बट वो हैव वी शिफ्टेड टू दैट टेक्नोलॉजी, और अगर नहीं शिफ्ट हुए तो कब तक शिफ्ट होंगे? वो पहला सवाल है. और दूसरा सवाल, अगर पॉली पे ही रहते हैं तो उसमें अभी पॉली सिलिकॉन प्राइसेस का क्या स्टेटस है? अब तो पॉली की तो संभावना खत्म हो गई, क्योंकि ये ओल्ड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ने भी इसको वो कर दिया है. और जो मैंने सेविंग की बात की थी वो स्पेस सेविंग की बात की आपसे, कि अगर जो स्पेस में पहले पॉली में जो स्पेस लगती थी 1 किलोवाट के लिए 100 स्क्वायर फीट लगती थी, वो अभी 1 किलोवाट के लिए 70 स्क्वायर फीट लगेगी. इस तरीके से मैंने समझा कि प्राइसिंग तो थोड़ी हायर हुई है उसके कारण पॉली से उसमें, और अभी निगोशिएशन चालू है उसमें. तो सर लास्ट टाइम आपने बताया था करीबन इट इज 24-25 का प्राइसिंग है, तो ये टाइम प्राइसिंग इज अराउंड व्हाट, वहीं पे है या थोड़ा कम या ज़्यादा हुआ है? ये अभी निगोशिएशन चालू है. मैं आपको बताऊंगा, शायद अगले क्वार्टर तक निगोशिएशन एक बार कंप्लीट हो जाए इन सब लोगों से, फिर आपको बता पाऊंगा ये बात में. ओके सर, युगांडा तो ठीक है, बट बाकी ऑर्डर्स भी मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट वी हैव सफर्ड अ लिटिल on the export front because of American
अमेरिकन मार्केट अंडरगोइंग रिसेशन और वहाँ का सेल्स डिविडेंड तो मिला है अपने को 2 साल लगातार, बट सेल्स वहाँ के एक्सपोर्ट के क्या हुए हैं? 25% की ग्रोथ हमने पूरे एक्सपोर्ट बिजनेस में की है और रमेश और अमेरिका बिजनेस के बारे में लाइट डालेंगे। हम लोगों ने यूएस में भी अच्छी ग्रोथ करी है। इस साल हम लोगों ने 30% की ग्रोथ करी है वहाँ पर। लास्ट क्वार्टर में थोड़ा डी ग्रोथ होगा। लास्ट क्वार्टर में डी ग्रोथ तो नहीं है। अच्छा, नहीं है तो ओके। अमेरिकन मार्केट का वैल्यू कितना होगा? आउट ऑफ 70 करोड़ 69 करोड़ एक्सपोर्ट बैठेगा। मैं अभी वैल्यू तो नहीं दे पाऊंगा, परसेंटेज में मेरे पास मैं आपको बता देता हूँ। 30% ऑफ द एक्सपोर्ट सेल। ओके। और सर लास्ट क्वेश्चन, अफ्रीका युगांडा तो ठीक है, घाना और बाकी सारी कंट्रीज लाइन में तो होंगी आई प्रिज्यूम, तो इसका कब क्या कैसे कुछ हो सकता है वो मैं जानना चाहता हूँ। हाँ जी, उस पर भी हम लोग काम हमारा चालू है। जब भी कोई न्यूज़ आती है हम आपको अपडेट करते हैं। और ये इसका एक एक्सपीरियंस आने दीजिए युगांडा का, उसके बाद अपन दूसरे एलओसी प्रोजेक्ट के जो फ्रंट है वो खोलेंगे। एक बार हम खुद ही इसका एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं। ओके। उसके अगले फ्रंट बाद में खोलते हैं। एक बार एक्सपीरियंस इसका चालू हो गया इस प्रोजेक्ट का। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू हार्दिक, थैंक यू। Thank you. Our next question is from the line of Mr. Nitin from KIFS Trade Capital Private Limited. Please go ahead. Yeah, thanks for taking my question. With reference to the current 2-year order of 8.6 lakh pump, what's the market share strategy which you are planning? Because some of the states may be aggressive and some states you might decide based on. So if you can share some thoughts, you're getting major market share in that. नितिन, हमने पुराने कॉल में भी बताया था ये बात कि हम 30 से 35% तक मार्केट शेयर हम अपना बना के रखते हैं और आगे भी कोशिश यही रहेगी कि हम लोग अपने अच्छे मार्केट शेयर पर काम करें। अब बेसिकली जो 80% क्वांटिटी है वो तो हमारे उन्हीं स्टेट में जहाँ पे शक्ति पंप्स का ब्रांड बड़ा अच्छा मजबूती से खड़ा है और हमको सारे हमारे जो कस्टमर है वो एक उसकी हमको फ़ायदा भी देते हैं और वो हमारे ब्रांड के बारे में जानते भी हैं। तो 80% मार्केट हमको वहीं से जो 40% मार्केट में से हमको मार्केट शेयर लेना है और एक अच्छे मार्केट शेयर लेने की हम पूरी कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे। एक बार लेके पूरा नंबर्स आपको एग्जीक्यूट करके फिर बताएंगे। थैंक यू। और मार्जिन शायद ये डबल डिजिट नियरली हो सकता है अभी, क्योंकि प्राइसिंग भी गवर्नमेंट ने फेवरेबल की है। तो ये जो लो बना है आपका 7%, कैन वी एक्सपेक्ट समथिंग ऑन मिड डबल डिजिट? यस नितिन, बिल्कुल अच्छे से आपने इसको बहुत लोग इसको क्वेश्चन का आंसर चाह रहे होंगे। यस डेफिनेटली, मार्जिन के लिए ही कंपनी है और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को मार्जिन नहीं देगी तो मजा भी नहीं आएगा। तो यस, मार्जिन डबल डिजिट पे जाने की पूरी कोशिश करेंगे हम लोग कि डबल डिजिट पे लेके जाएं उसको। ऑल द बेस्ट सर, मिड डबल डिजिट कर दीजिएगा। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you. Our next question is from the line of Forum Makim from Equity Capital. Please go ahead. Hello sir, congratulations on being qualified for 21 states. सर ये हमारा जो ऑर्डर है कुसुम का, उसमें अभी ये नेक्स्ट 1 मंथ एग्जैक्टली क्या होने वाला है, आप बता सकते हैं? क्या प्रोसेस होगा? ओके, फर्स्ट तो ऐसा होगा मैडम कि अभी हमने आज लेटर भेजा है उनके जो 21 स्टेट है उसमें जो रेट्स आए उन रेट्स पे हमने एक लेटर भेजा है उनको कि हमको ये रेट एक्सेप्टेबल है और अगले 2 साल तक हम इस पे काम करेंगे, ऐसा हमने उनको लेटर भेजा है। उसके ऊपर से उनकी मीटिंग में एक फाइनल रेट लिस्ट तैयार होगी और वो सारी रेट लिस्ट अपने एसएनए को भेजेंगे, जितने भी स्टेट के नोडल एजेंसीज है उनको भेजेंगे और एसएनए जो है उसके ऊपर से हमको एलओआई के लिए ऑफर देंगे कि आप आइए इस पर एग्रीमेंट करिए। फिर हम वहाँ पर एग्रीमेंट करेंगे और फिर वहाँ स्टेट के साथ हम लोग काम स्टार्ट कर देंगे। ये प्रोसीजर है इसका। तो ये अग्रीमेंट आप बोल रहे हो आ जाएगा नेक्स्ट 1 मंथ में, सब अग्रीमेंट हो जाएगा स्टेट के साथ? यस, अगला 1-1.5 महीना जाएगा उनके साथ एग्रीमेंट होने में और सब कुछ रेडी है, सब तैयार है। सब लोगों ने कुछ स्टेट ने अपने बजट का भी प्लान करके रखा है
और हरियाणा जैसी स्टेट तो ऑलरेडी बहुत एग्रेसिव जा रही है, तो वो लोग भी आगे जा रहे हैं। राइट सर। और हरियाणा में जो हम अपना 500 करोड़ का ऑर्डर पेंडिंग था सर, तो अभी आप जो रेट भेज दोगे कि एक्सेप्टेबल है, तो क्या हम ये 500 करोड़ एग्जीक्यूट कर सकते हैं ये क्वार्टर में? नहीं, ये क्वार्टर की तो मैं बात वैसे ही नहीं कर रहा हूँ। कुसुम की सेल Q2 से स्टार्ट होगी, और यस, अभी जो हमारे जो ऑर्डर होल्ड हुए थे उनमें से हमको बिजनेस मिलना चालू हो जाएगा, और Q2 से हरियाणा का बिजनेस भी आप अच्छा देखेंगे। तो वो जो 500 पेंडिंग था वो हम Q2 में करेंगे? अच्छा, उसमें से जो जितने ऑर्डर हम एग्जीक्यूट करते जाएंगे वो मैं आपको फाइनल कॉल में बताते जाऊंगा। ओके सर। और सर ये इलेक्शन वगैरह आ रहा है सब स्टेट्स का, ये वो, तो उसकी वजह से कुछ स्लो डाउन आ सकता है? कतई नहीं। इससे आज रेट अगर फाइनल हो जाते हैं, LOI एक्सेप्ट हो जाता है, और स्टेट अगर एग्रीमेंट कर लेती है, और स्टेट अगर बजट प्लान करती है, तो हम तो सप्लाई करेंगे। गवर्नमेंट कोई भी आए उससे क्या फर्क पड़ता है। ओके सर। और सर हमने कुसुम 1-2 में देखा था इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा स्लो था, जितना टारगेट किया था उतना हुआ नहीं। तो कुसुम 3 के लिए हमको कैसा इम्प्लीमेंटेशन एक्सपेक्ट करना चाहिए और कितना करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 2 years? ये देखिए, एक्चुअली पूरा न्यू बिजनेस है, और नया पायलट प्रोजेक्ट Q1 भी आया था, Q2 भी पायलट आया था, और Q1 और Q2 में ESL ने काम किया था, और जितनी भी समस्याएं वो आई थी उसको दुरुस्त करते हुए फिर अभी ये सेकी ने किया है। सेकी मोर एक्सपीरियंस है, और सेकी मोर अच्छे से काम करने वाली कंपनी, भारत सरकार की कंपनी है। तो इम्प्लीमेंटेशन में मुझे नहीं लगता कि अब कोई और इसमें कोई समस्या आनी चाहिए। हम लोग टाइम पे करेंगे। राइट सर। और सर वो महाराष्ट्र का टेंडर 1 लाख पंप का वो आया कि क्या हुआ? हाँ, वो एक्चुअली महाराष्ट्र का जो पंप है उनके पास जो उन्होंने सैंक्शन के लिए भेजा था, वो उन्होंने सरकार के पास फिर से उसकी परमिशन के लिए भेजा है कि जो लोगों को कनेक्शन है उनको भी वो कुछ पंप्स देना चाह रहे हैं। तो उसके लिए उनकी GR का वेट हो रहा है। वो GR का वैसे ही उनकी महाराष्ट्र सरकार परमिशन देगी तो वो टेंडर भी आएगा। ओके सर। तो सर एक बार ये कुसुम 3 स्टार्ट हो गया तो हम क्या रन रेट ऑफ पंप्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर क्वार्टर? यस, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा है कि Q2 में एक बार हम लोग इसकी एक फीलिंग ले लें कि इसको कैसे, और नए स्टेट में कैसे हम जा रहे हैं, और पुराने स्टेट में हम लोग क्या कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, उसके बाद ही हम किसी नंबर का आपसे प्रॉमिस करेंगे। राइट सर। सर जस्ट 2 more क्वेश्चन सर। हम बोल रहे हैं हमको 280 का तो प्राइस मिल गया है 250 से 250 से, तो 12% इंक्रीज तो हो गया, प्लस अपना हाई कॉस्ट इन्वेंट्री भी थोड़ा बहुत निकल गया होगा, और रॉ मटेरियल प्राइस भी कम हो गया है अभी, तो सर डबल डिजिट मार्जिन तो अपना हो जाना चाहिए, राइट? हाँ बिल्कुल, पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस बार अपने शेयर होल्डर्स को डबल डिजिट मार्जिन की तरफ लेके जाएं। ओके सर। और सर ये जो 8 लाख पंप्स है उसमें से 5 HP एंड अबव कितने होंगे, उसका डिमांड कितना होगा? ये सब आपको है ना सेकी की वेबसाइट पे और वेबिनार की वेबसाइट पे सेक्शन वाइज, स्टेज वाइज, HP वाइज सब दिया हुआ है, वहाँ मिल जाएगा। डाटा मेरे पास है नहीं, मैं आपको मेल करा दूंगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। Thank you. Thank you. Our next question is from the line of Dipesh Sancheti from Mania Finance. Please go ahead. Yes, sir. Sir, first thing तो what is our capacity and इस बार utilization क्या हुआ था in India as well as Uganda? अभी हमारी टोटल कैपेसिटी का पूरे साल में 30% के आसपास कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन हुआ है, और हमारी कैपेसिटी 5 लाख पंप सेट बनाने की है कि हम 5 लाख पंप सेट बना के सप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड इसमें से कितने सोलर पंप्स हम बना सकते हैं? ये सारे ही 5 लाख पंप सोलर बना सकते हैं। सारे ही 5 लाख। तो जो अभी PM कुसुम का टेंडर है 8,57,000 सोलर पंप्स का, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितना होगा सर? मतलब क्या मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 2.8 लाख से? बिल्कुल कर सकते हो, आप 3 लाख से कर सकते हो। अगर तो सर ये ऑलमोस्ट फिर 24,000 करोड़ का ऑर्डर होता है, एंड कंपनी जनरली हैज अ मार्केट शेयर ऑफ 30 to 35%, तो कैन वी डू 8,000 करोड़ इन द नेक्स्ट 2 years? अगले साल बात करेंगे अपन।
एज इन अगले क्वार्टर नहीं? नहीं, अगले क्वार्टर नहीं, नेक्स्ट ईयर हम बात करेंगे अपन क्या कर सकते हैं। अभी ये पायलट प्रोजेक्ट था, यहाँ तक शुरू होके यहाँ तक आए हैं। 500 करोड़ कंपनी करती थी, 1000 किया, अभी आगे कैसे क्या करना है अभी हुआ है, फिर धीरे धीरे कितना होता है आपको बताएंगे। बिजनेस की अपॉर्चुनिटी तो दिख रही है कुछ में अच्छी है। एज इन बिकॉज दिस एंटायर ऑर्डर, ये सारा ऑर्डर्स 2 साल में कंप्लीट करना है, तो नेक्स्ट क्वार्टर तक हमें पता चल जाएगा कि कितने ऑर्डर्स हमें मिले हैं और कितना नेक्स्ट 2 years में हमारा रन रेट हो सकता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि ये जो 8,57,000-56,000 पंप्स की आप बात कर रहे हो, ये सेंक्शन भारत सरकार ने स्टेट को दिया है और ये टेंडर किसी L1 कंपनी के नाम से किसी को नहीं मिलता है। ये रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है। मेरे कस्टमर जितना मुझे पसंद करेंगे उतने ऑर्डर की क्वांटिटी मुझे देंगे या मेरे कॉम्पिटिटर को देंगे। तो हमारा ब्रांड और हमारा क्वालिटी पे हमको भरोसा है और हम एक अच्छा मार्केट शेयर इसमें से एग्जीक्यूट करेंगे और डेफिनेटली आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है आप उसको एनालिसिस भी कर पाएंगे और उसको देख भी पाएंगे। सर जस्ट टू अंडरस्टैंड सर कि ये ऑर्डर्स हर क्वार्टर दिए जाएंगे या 8,57,000 पंप्स का ऑर्डर सीधा 1.5 महीने या 2 महीने में सारे वी विल नो कि किसको कितना ऑर्डर मिला है? नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा, ऐसा कतई नहीं होगा। ये क्वांटिटी 2 साल के लिए मिली हुई है और इसमें रेट कॉन्ट्रैक्ट होगा। मैं आपको एक प्रोसीजर समझा देता हूँ कि भारत सरकार ने सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ है। स्टेट को एक पोर्टल, नोडल एजेंसी और स्टेट को एक पोर्टल बना के दिया हुआ है। उस पोर्टल पे फार्मर्स के पास सारे मेरे कंपटीशन की और मेरी लिस्ट उनके पास पहुंच जाएगी। फिर वो उसमें से चूज करेंगे, फिर वो उनका मार्केट शेयर उसमें डालें, उनका जो कस्टमर शेयर है जो सब्सिडी का वो उसमें डालेंगे और उसके बाद वो ऑर्डर पोर्टल के थ्रू SNA के पास आएगा और SNA हमको उसको ऑर्डर बना के देगा। फिर हम सप्लाई करेंगे, फिर वो उसमें थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होगा और फिर हमको उसका पेमेंट मिलेगा। इस तरीके से ये प्रोसेस है। तो ये रेट कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब ये क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी हमको 2 साल में पूरी करनी है। ओके सर, ओके। तो डिसीजन मेकर फार्मर है इसमें। फार्मर डिसीजन लेगा कि उसको कौन सी कंपनी का पंप लेना है। ओके, ओके। एंड व्हाट इज द करंट ऑर्डर बुक सर? अभी फिलहाल हमारे पास जो एक्सपोर्ट की और कुछ डोमेस्टिक के ऑर्डर बुकिंग है, जो अराउंड करीब 25 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुकिंग है हमारे पास। ओके। और युगांडा कितना है मतलब आफ्टर द रैंप अप? नहीं, युगांडा का प्रोजेक्ट जो है वो अलग से रहता है। ये जो हमारी जो प्लानिंग हम जो बताते हैं ये विदाउट प्रोजेक्ट बताते हैं। अच्छा, विदाउट प्रोजेक्ट। ओके सर, राइट नाउ डेट सिचुएशन कैसा है एंड आगे जाके मतलब नेक्स्ट 2 years में विल वी मेंटेन द सेम डेट? क्या वी विल रैंप अप बिकॉज वी विल नीड मोर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन? अभी एग्जैक्टली का जवाब दे रहे हैं आपको। एग्जैक्टली जो आज की डेट में 31 मार्च में हमने फिनिश किया है वो 71 करोड़ पे शॉर्ट टर्म फिनिश किया है और 2.42 करोड़ पे लॉन्ग टर्म। और अभी हमारे पास जो टोटल सेंक्शन है बैंक से वो है अराउंड 500 करोड़, जिसमें 50% फंड बेस है, 50% नॉन फंड बेस है। सो सफिशिएंट सेंक्शन अवेलेबल है किसी भी टर्नओवर को करने के लिए और बैंक भी सपोर्ट करने के लिए रेडी है। और आपकी कंपनी कैश कंपनी है, कोई टर्म लोन बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कोई लोन नहीं है, सिर्फ जो 70 करोड़ का लोन कुछ बहुत बड़ा नहीं होता है इस टेक्नोलॉजी के सामने। बहुत सारे पैटेंट्स हमारे पास है और बहुत अच्छी कैपेसिटी हमने डेवलप की हुई है। I completely understand that the loan is not big enough, but मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि क्या हम ज़्यादा लोन उठाएंगे बिकॉज ऑफ हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन? अभी हम ट्राई यही कर रहे हैं कि हमारा इंटरनल इक्विटी से जितना ज़्यादा हो सके उतना, पर हमारे पास सफिशिएंट लोन भी अवेलेबल है वर्किंग कैपिटल को सपोर्ट करने के लिए, तो वो मैं आपको आंसर कर रहा हूँ। और टर्म लोन की हमको अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, जो ये इसका पेमेंट साइकिल कैसे होता है? जो फार्मर्स है वो एडवांस पेमेंट करते हैं या गवर्नमेंट वो पैसा रखती है और मतलब डिस्पैच होने के कुछ महीने के बाद पैसा आता है? हाउ डज द पेमेंट हैपन? इट इज बहुत अच्छा, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 90% पेमेंट जो है हमको विद इन 30 डेज मिलना की कंडीशन टेंडर्स की है कि 90% पैसा विद इन 30 डेज हमको SNA दे देगा और 10% 30 दिन के बाद देगा। हमको कुछ सप्लाई देंगे 90 डेज के बाद।
वो पैसा हमको मिलेगा। 10% जो गवर्नमेंट होल्ड करके रखेगी और 90% पैसा इमीडिएट हमको मिल जाएगा। अब फार्मर सबसे पहले एडवांस पे उसका जो मार्केट शेयर, जो उसका फार्मर शेयर है, अगर 30% फार्मर शेयर है तो 30% पैसा वो पहले एडवांस SNA को देता है। स्टेट उसका 30% देता है और सेंट्रल का 30% आता है। उसके बाद ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद ही हम लोग सप्लाई करते हैं। तो पेमेंट मैक्सिमम 90 डेज में हमारे पास पलट के आ जाता है। Great, sir. Thank you so much, sir, and all the very best. I hope you will definitely achieve your double-digit margins, and more so, I think 8,000 crores का तो order मेरे को लगता है 2 साल में आप कर ही दोगे। Yes, definitely, sir. Great. Thank you. Thank you. Our next question is from the line of Rikesh Parekh from Rockstone Capital LLP. Please go ahead. Thanks for the opportunity. सर मुझे जानना था कि 21 स्टेट में हम लोग एलिजिबल हुए हैं इन द कुसुम 3, तो इसमें से कितने स्टेट के अंदर हम लोग L1 हो गए? हमारा L1 आना कोई ड्रीम नहीं था। हम लोग L1 आना ही नहीं चाहते थे, लेकिन टोटल 900 लाइन आइटम थी पूरी टेंडर्स में। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि हम सिर्फ 15 लाइन ऑफ आइटम में हमारे रेट्स कुछ 25% से ज़्यादा थे और कुछ 19 लाइन आइटम में हम लोग L1 आए। ओके, 19 लाइन आइटम में हम L1 आए। ओके, सेकेंडली सर जाना जाता है कि इन टर्म्स ऑफ जो लोग ने जो पार्टिसिपेट किए हुए हैं अदर देन अस, उसमें से हम किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट या सप्लाई का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है हमें? OEM का होगा, जहाँ पर हमारी टर्म्स एंड कंडीशन से OEM हमारे से लेना चाहेंगे, हम डेफिनेटली OEM को सप्लाई करेंगे। नहीं मतलब किसी के साथ कोई पहले से एग्रीमेंट हुआ हो या फिर जो लोग के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई हो, जस्ट जानना चाहता हूँ इन जनरल। नहीं, अभी फिलहाल कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं किसी के। नथिंग है तब ना। ओके सर, थर्ड जस्ट एक ही जानना था, हम लोग ने जो बताया था कि एक EV मोटर के लिए हम लोग का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था या कुछ सक्सेस मिला था, तो वहाँ पे कुछ आगे क्या हुआ है? हाँ, बिल्डिंग जोरों पे चल रही है। उसके लिए जो लैंड का काम चल रहा है, बिल्डिंग बन रही है, कुछ प्लांट एंड मशीनरी के ऑर्डर्स प्लेस किए हैं और कुछ डेवलपमेंट भी पास हुए हैं। तो वो EV की पूरी डेवलपमेंट R&D की टीम फुल फ्लेश काम कर रही है। उसमें हमको लगता है कि आने वाले 2 साल में जरूर हम उसमें अच्छे से उसको एक इंडिया में एक अच्छा वो भी दे पाएंगे, क्योंकि अभी हमको सामने से भी कुछ कंपनियों के फ़ोन कॉल आना चालू हुए हैं, क्योंकि भारत सरकार ने 54% EV में इंडियन मटेरियल्स का कंपनसेशन लगा दिया है, उन्हीं को सब्सिडी मिलेगी। तो अब लोग पहले तो सब लोग चाइना, अभी सब उन्होंने जाना बंद किया, वो इंडिया के मैन्युफैक्चर ढूंढ रहे हैं। ओके, नहीं सर जाना जाता है मीन्स टोटल कितनी लागत होगी और इसमें मतलब हमारे पास कुछ फॉर्म ऑर्डर है 1 या 2 कंपनी से या कैसे है? हाँ, हमारे पास कुछ कंपनियों से हमने उनके साथ JV भी किया है और डू नॉट डिस्क्लोज भी साइन किया है, इसलिए नाम नहीं बता पाऊंगा। कुछ कंपनियों के लिए हम काम कर रहे हैं, उनके लिए स्पेसिफिक मोटर डिजाइन कर रहे हैं। मतलब कितना इन्वेस्टमेंट प्लान किया है और कब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका एग्जीक्यूशन? यस, इसका हमने जो इस पूरे EV प्रोजेक्ट का 250 करोड़ का हमने इन्वेस्टमेंट प्लान किया है। उसमें 50 करोड़ शक्ति पंप्स अपनी इक्विटी लगाएगा और 200 करोड़ देखेंगे कि उस समय क्या स्थिति रहती है, उसमें लोन लेना है तो लोन लेंगे या इक्विटी से लेना है तो इक्विटी से करेंगे। जैसा भी होगा वो उसका प्लान 2 साल के बाद ही आने वाला है। तो अभी हम लोग 50 करोड़ स्टार्ट करके 1 साल के अंदर इसको एक अच्छे स्टेटस में उसको ले आएंगे, उसके बाद अगला प्लानिंग करेंगे। ओके, सो मतलब 50 करोड़ पे हम लोग एग्जीक्यूशन चालू कर देंगे और रैंप अप के लिए फिर दूसरा लोन लेके या JV पार्टनर के थ्रू कैसे करना है वो प्लान करेंगे, राइट? परफेक्टली राइट, ऐसे ही प्लान है। बड़ा करें पहले उसको। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ नंबर हम लोग ये साल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ रेवेन्यू टॉप लाइन में आना चालू हो जाएगी बाय द एंड ऑफ द ईयर? हाँ, जरूर। ओके, थैंक्स, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। Thank you. Our next question is from the line of Bala Subramanian from Arihant Capital Markets Limited. Please go ahead. हेलो Yes.
Yeah, sir, just wanted confirmation on the payment cycle that you mentioned. 90% of the payment is received in 30 days or 90 days? आप अगर वो एक बार reconfirm कर सके तो? श्योर श्योर, वो तो बिल्कुल मीन में भी कंफर्म कर सकता हूँ. 90% विद इन 30 डेज और 10% विद इन 90 डेज. ओके, एंड एडवांस आपको जो भी 30% एडवांस मिलता है, राइट, फ्रॉम द फार्मर एंड द गवर्नमेंट? नहीं, 30% एडवांस हमको नहीं मिलता. 30% एडवांस जो फार्मर का शेयर है वो SNA के पास जाता है. अच्छा, ओके ओके, अंडरस्टूड. एजेंसी उनके पास जाता है. ओके, अंडरस्टूड. पैसा ही मिलता है. अगर हमने आज बिल 100 रुपये का किया है तो 90% पैसा विद इन 90 डेज हमको मिलेगा. 10% पैसा हमको विद इन 90 डेज मिलेगा. Understood. Thank you so much for the clarification, sir. Thank you. Thank you. Due to time constraint, that was the last question of our question and answer session. I would now like to hand the conference over to Mr. Dinesh Patidar for closing comments. थैंक यू. आप सभी का आभार. आप सब लोग इसमें पधारे और फोन कॉल में आपने मुझे सुना और मैं ऐसा पूरी कोशिश करूंगा. कोशिश की है मैंने आपके प्रश्नों के जवाब देने की. और फिर भी अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमारी EY टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, IR टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं. और मैं आपका आभार मानते हुए इस कॉल को धन्यवाद करता हूँ. थैंक यू. Thank you. On behalf of Shakti Pumps India Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.